وزیر اعظم نریندر مودی آج 7 نئی دفاعی کمپنیوں کو قوم کے نام کریں گے وقف۔ دفاع تیاریوں میں ملک بنے گا خود کفیل۔ دفاعی سامان کی تیاری کے شعبے میں بڑھیں گی صلاحیتیں اور اختیارات کے نئے امکانات ہوں گے روشن۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے سورت میں سوراشٹر پٹیل سیوا سماج کے ذریعے تعمیر کیے گئے لڑکوں کے ہاسٹل کے پہلے مرحلے کی پوجا تقریب میں ہوں گے شریک۔ اس ہاسٹل میں تقریباً 1,500 طلبہ کے لیے ہے رہائشی سہولتیں۔ سوراشٹر پٹیل سیوا سماج ادارے کا مقصد ہے سماج کے کمزور طبقوں میں تعلیمی اور سماجی تبدیلی لانا۔ وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے انڈیا USEFP کے 8ویں وزراء میٹنگ میں لیا حصہ۔ رقم کی ہیرا پھیری اور دہشت گردوں کو رقم کی فراہمی کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے کی مسلسل تعاون کی اپیل۔ ملک میں کووڈ کے خلاف مہم تیز رفتار سے جاری، 97 کروڑ سے زیادہ افراد کو لگائے گئے ٹیکے۔ بھارت کو اکتوبر میں 100 کروڑ کا نشانہ حاصل کرنے کی امید۔ 30 سے زیادہ ممالک نے دی بھارت کی کورونا ویکسین ٹیکہ کاری سند کو منظوری۔ امریکہ کے خوراک اور دواؤں کے کنٹرول ادارے FDA کے مشیروں نے 65 سے زیادہ عمر اور شدید بیمار افراد کے لیے ماڈرنا کووڈ ویکسین کے بوسٹر شاٹس کی سفارش کے لیے کی ووٹنگ۔ FDA 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے بوسٹر ڈوز کو بتایا تھا ضروری۔ لبنان کی دارالحکومت بیروت میں شیعہ ریلی کے دوران فائرنگ میں 6 کی موت۔ گزشتہ سال بندرگاہ دھماکے میں اہم تفتیش کار کو برخاست کرنے کے مطالبے پر ہوئے ہیں مظاہرے۔ اور کھیل کی خبروں میں IPL کی خطابی جنگ کے لیے دبئی تیار۔ آج 2 بار کی چیمپئن ٹیم کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ 3 بار کی چیمپئن چنئی سپر کنگز سے۔ دونوں ٹیمیں دوسری بار فائنل میں ہوں گی مد مقابل۔ اور آج پورے دیش میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے دشہرا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج دراس میں جنگی یادگار پر اسلحے کی پوجا کے ساتھ جوانوں کے ساتھ منائیں گے یہ تہوار۔ ناظرین آداب، صبح 9 بجے کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی، اور آئیے اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 7 نئی دفاعی کمپنیاں قوم کے نام وقف کریں گے۔ وہ وزارت دفاع کے ذریعے منعقد افتتاحی تقریب سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کریں گے۔ اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دفاع سے متعلق صنعتی تنظیموں کے نمائندے بھی موجود رہیں گے۔ حکومت نے آرڈیننس فیکٹری بورڈ کو سرکاری محکمے کے مقام پر 100% سرکاری ملکیت والی 7 کارپوریٹ کمپنیوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا مقصد دفاعی تیاریوں میں ملک کو آتم نربھر بڑھانا ہے۔ اور اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وجے دشمی اور ملک کے میزائل مین ڈاکٹر APJ عبد الکلام کا یوم پیدائش دفاعی شعبے کے لیے نہایت ہی اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج وزیر اعظم نریندر مودی کی ترغیب سے 7 نئی دفاعی کمپنیوں کو قوم کے نام وقف کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ آج بھارت کے میزائل مین اور سابق صدر جمہوریہ آن جہانی ڈاکٹر APJ عبد الکلام کا یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے سابق صدر ڈاکٹر APJ عبد الکلام کے یوم پیدائش پر انہیں سلام کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ میزائل مین کے طور پر ملک کے معروف صدر ڈاکٹر APJ عبد الکلام جی کو ان کے یوم پیدائش پر سلام۔ انہوں نے اپنی زندگی بھارت کو طاقتور، خوشحال اور مضبوط بنانے کے لیے وقف کر دی۔ ملک کے شہریوں کے لیے وہ ہمیشہ تحریک کا باعث رہیں گے۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے سورت میں سوراشٹر پٹیل سیوا سماج کے ذریعے تعمیر لڑکوں کے ہاسٹل کی بھومی پوجن تقریب میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے حصہ لیں گے۔ ہاسٹل کی عمارت میں تقریباً 1,500 طلبہ کے لیے رہائشی سہولت ہے۔ اس میں ایک آڈیٹوریم اور ایک لائبریری بھی ہے۔ تقریباً 500 طالبات کے لیے
दूसरे मरहले की तामीर आइंदा बरस शुरू होगी। स्वराज पटेल सेवा समाज 1983 में कायम किया गया एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसका अहम मकसद समाज के कमज़ोर तबक़ात की तालीमी और समाजी तरक्की है। ये तलबा को मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी में मदद करता है और उन्हें कारोबार व हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए प्लेटफॉर्म भी फराहम कराता है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन एक हफ़्ते के अमरीकी दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी ट्रेज़री के सेक्रेटरी जेनेट बेलेन से भारत अमरीका इक़्तिसादी और माली शराकतदारी इंडिया USEFP की 8वीं वज़ारती मीटिंग के लिए मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने जामी इक़्तिसादी नज़रिए और वबा से बाहर निकलने, मालियाती रेगुलेटरी और तकनीकी ताउन, मौसमियाती फ़ाइनेंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली ताउन के मुकाबले समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन और अमरीकी ट्रेज़री सेक्रेटरी बेलेन ने आलमी इक़्तिसादी मसाइल को हल करने के लिए दो तरफ़ा और कसीर जहती तौर पर मसरूफ़ियत जारी रखने के अपने अज़्म का इआदा किया है। भारत UNHRC की छठी मुद्दत 2022-24 के लिए अक्सरियत से दोबारा मुंतखब किया गया है। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन ने भारत में अपना एतमाद ज़ाहिर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान के तईं शुक्रिया का इजहार किया है। भारत के मुस्तक़िल कमीशन ने कहा है कि भारत सम्मान, संवाद और सहयोग के ज़रिए इंसानी हुकूक़ की तशहीर और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता रहेगा। भारत कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 100 करोड़ टीके लगाने का हदफ हासिल करने के बहुत नज़दीक पहुँच गया है। इसके अहम कामों में डॉक्टरों, नर्सों और दीगर सेहत एहलकारों का ताउन काबिल सताइश है। अब तक मुल्क में 97 करोड़ 11 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी हैं। कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 27 लाख खुराकें दी गई। कोविड के खिलाफ भारत अपनी लड़ाई में एक और कामयाबी हासिल करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सेहत के वज़ीर मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा है कि मुल्क 100 करोड़ टीकाकारी के हदफ की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी तक कोविड-19 टीके की 97 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। वज़ीर सेहत ने कोरोना वॉरियर्स पर भी कॉफ़ी टेबल बुक की रहनुमाई करते हुए कहा है कि 100 करोड़ टीकाकारी का हदफ 18 या 19 अक्टूबर के आसपास हासिल करने की उम्मीद है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि 100 करोड़ डोज का हदफ हासिल करने के बाद हुकूमत पहली खुराक ले चुके अफराद की दूसरी खुराक को यकीनी बनाने के लिए मिशन मोड में काम करेगी। मुल्क में अब तक 97 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लग गई है। अगले हफ्ते भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के आदाद-ओ-शुमार को पार कर जाएगा। ये एक तारीखी पल होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और तेज़ रफ्तार टीकाकारी मुहिम चलाने वाला मुल्क है। भारत जिस दिन 100 करोड़ डोज के आदाद-ओ-शुमार को पार करेगा, उस दिन मुल्क के सभी एयरपोर्ट पर, हवाई जहाज़ में, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर, समुद्री साहिलों पर खड़ी जहाज़ों में एक साथ इसका ऐलान किया जाएगा। यही नहीं, इस पल को यादगार बनाने के लिए दिल्ली के किसी अहम मकाम पर 100 फीट का तिरंगा झंडा भी लहराया जाएगा। साथ ही #वैक्सीन सेंचुरी भी सोशल मीडिया पर चलाई जाएगी। स्पाइस जेट ने एक अनोखे प्रोग्राम को चलाने का ऐलान किया है। स्पाइस जेट अपने जहाज के चारों तरफ रैपर लगाएगा जिसमें 100 करोड़ वैक्सीन डोज लिखा होगा और हेल्थ केयर वर्कर का फोटो लगा होगा। इस तारीखी मौके को खास बनाने के लिए मरकजी वजीर सेहत ने कोरोना वॉरियर्स को एजाज देने की अनोखी पहल की है। वजारत सेहत मुल्क के अलग अलग हिस्सों के 13 कोरोना वॉरियर की वीडियो जारी कर रहा है। इस वीडियो में उन कोरोना वॉरियर की कहानी होगी जिन्होंने टीकाकारी मुहिम के तई बेदारी के अलावा कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए लोगों को बेदार किया है। इनकी कहानी अवामी शराकतदारी की अनोखी मिसाल है जो आने वाली नस्लों को तरगीब देगी। इन वॉरियर्स में एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई मुलाजमीन, डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर के साथ माशरे के लोग भी शामिल हैं। इन वॉरियर ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तरगीब दी है। जुमेरात को एक ऐसे ही कोरोना वॉरियर का वीडियो वजारत सेहत ने जारी किया। ड्राइवर अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी माँ का निधन हो जाता है, वो कोई पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा के वो वहाँ से भागता है,
अपनी माँ की अंतिम क्रिया करके फिर से काम में जुट जाते हैं। और कई ऐसे लोग ये ड्यूटी करते करते कोविडग्रस्त हो गए, लेकिन भी अपनी ड्यूटी है ऐसा समझ के उन्होंने अफसोस नहीं किया और फिर जब ठीक हुए तो फिर काम में लग गए। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च किया, जिसमें इन कोरोना वॉरियर की कहानी है। अब तक 73% बालिग आबादी को टीका लगाया जा चुका है। 100 करोड़ वैक्सीन का डोज लग जाने के बाद दूसरी डोज लगाने के लिए मुल्क भर में एक बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। इस कॉफी टेबल बुक में उस एम्बुलेंस ड्राइवर की कहानी है जिसकी मां की मौत हो जाने के बाद भी अपने फर्ज को निभाते हुए मरीज को उसके घर तक छोड़ा। उसके बाद अपनी मां की आखिरी रसूम में वो शामिल हुआ। मुल्क भर में ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों तक याद रखी जाएगी। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और कोरोना के दौर में पूरी दुनिया ने इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बीमारी के कंट्रोल की अहमियत को देखा और समझा भी है। इस बात को जहन में रखते हुए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीबीटी का पहला वन हेल्थ मंसूबा शुरू किया। प्रोग्राम में एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुतासिर करने वाले अहम बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन की रोकथाम पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर स्वरूप ने इंसानों, जानवरों और जंगली हयात की सेहत को समझने के लिए एक जामे नुक्ते नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मुस्तक़बिल के वबाई अमराज से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तकरीब में बैनुल अक़वामी और कौमी मुक़र्रिरीन ने एक सेहत के तस्वुर की इब्तदा और तरक्की के बारे में अपने ख़यालात का इश्तराक किया, जहाँ इंसानों, जानवरों, पौधों और माहौलियात को एक दूसरे की तकमील समझा जाना चाहिए ताकि सबकी सेहत को बरकरार रखा जा सके। वन हेल्थ सहायता संघ में एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, IVRI बरेली, GADVASU लुधियाना, TANUVAS चेन्नई, MAFSU नागपुर, आसाम जरी और वेटरनरी यूनिवर्सिटी और ICAR-ICMR के कई मराकज़ और वाइल्ड लाइफ एजेंसियां शामिल हैं। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। तमिलनाडु हुकूमत ने जुमेरात को मंदिरों में वीकेंड पर पूजा पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। तमाम दुकानें बशमूल रेस्तरां और बेकरियों को 11 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत ने कहा है कि हफ्ते के आखिर में साहिलों पर जाने की पाबंदियों में भी नरमी की गई है। कोविड-19 हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ट्यूशन सेंटर खोले जा सकते हैं और रोज़गार के मेलों का एहतमाम भी किया जा सकता है। स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज़ को भी 1 नवंबर से तमाम क्लासें करने की इजाज़त होंगी। स्कूल के असातिज़ा, मुआविनीन और बावर्चियों को कोविड वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। अभी भी 100 से ज़्यादा अफराद शादी की तकरीबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और अब तक 30 से ज़्यादा ममालिक ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। जिन ममालिक ने मंजूरी दी है उनमें बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लबनान और आर्मीनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया भी शामिल हैं। दरियासना खारजा सेक्रेटरी ने उम्मीद जाहिर की है कि आलमी इदारे सेहत जल्द ही भारत की कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी देगा। अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के माहिर मुशीरों के एक पैनल ने 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों और संगीन बीमारी और वायरस के ज़्यादा खतरे में मुब्तला अफराद के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की बूस्टर खुराक की सिफारिश पर वोट दिया। तमाम 19 वोट बूस्टर खुराक के हक़ में डाले गए। अगर मॉडर्ना की बूस्टर खुराक को FDA से मंजूरी मिलती है तो अमेरिका के बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ इस बारे में मखसूस सिफारिशात करेंगे कि शॉट किसे मिलनी चाहिए। दरियासना CDC के मुशीरों की मीटिंग अगले हफ्ते होगी। FDA की वैक्सीन और मुतालिका हयातियाती मसनूआत की एडवाइजरी कमेटी ने जुमेरात को मॉडर्ना वैक्सीन की इजाफी खुराकों पर गौर फिक्र के लिए मीटिंग की। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी कमेटी आज गौर करेगी और मॉडर्ना 50 माइक्रोग्राम वैक्सीन पर मुश्तमिल बूस्टर को मंजूरी देने की मांग भी कर रहा है, जो बाकायदा खुराक की आधी ताकत है। वहीं फाइजर और बायोएनटेक इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 30 माइक्रोग्राम की वैक्सीन शॉट्स बना रहे हैं। और आज मुल्क भर में विजयदशमी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। भगवान राम की रावण पर फतह और बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर
विजय दशमी मनाई जाती है। ये नवरात्रि और दुर्गा पूजा की रसूमात के इख्तिताम की भी अलामत है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अवाम को दशहरे की मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की शख्सियत और मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर उनके तर्ज अमल के लिए सब के लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि ये त्यौहार मुआशरे की अखलाकी बुनियाद को मजबूत करेगा और शहरियों को मुल्क की तामीर के लिए राग़िब करेगा। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि दशहरा शैतानी क़ुव्वतों को ख़त्म करने और हम आहंगी को फ़रोग़ देने का मौका है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि यह त्यौहार मुल्क में अमन, हम आहंगी और खुशहाली लेकर आएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया आज द्रास में कारगिल जंगी यादगार पर गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज के आला कमांडर सदर जमहूरिया जंगी यादगार पर असलहे की पूजा के साथ दशहरे की तकरीब में शामिल होंगे। सदर जमहूरिया कोविंद ने कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शुमाली कमान के फ़ौजियों और उनके अहल खाना से बातचीत की। उन्होंने दशहरे पर जवानों को मुबारकबाद दी है। इससे कबल सदर जमहूरिया ने लेह में सिंधु दर्शन पूजा की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों को दशहरे की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि विजयदशमी के मुबारक मौके पर आप सभी को बहुत मुबारकबाद। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने दशहरे पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर सेहत ने कहा कि दशहरे के मौके पर तमाम अहले वतन को दिली मुबारकबाद। त्यौहार सच्चाई, मजहब, इंसाफ, इल्म और रोशनी की कामयाबी की अलामत। मुल्क के तमाम शहरियों को मुबारकबाद। ये मुक़द्दस त्यौहार आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तवानाई पैदा करे। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और नाज़रीन, अखबारात के जायज़े की शुरुआत करते हैं रोज़नामा इनकलाब से। अहम सुर्खियों की अगर बात करें तो BSF के इख्तियारात में इजाफे को अखबार ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अखबार ने लिखा है कि मरकज़ी हुकूमत ने BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कानून में तरमीम करके उसे पंजाब, मगरबी बंगाल और आसाम में बैनुल अक़वामी सरहद से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह पर अब 50 किलोमीटर के बड़े दायरे में तलाशी लेने की और साथ ही ज़ब्ती करने और गिरफ्तार करने के इख्तियारात दे दिए हैं, जिससे BSF को ख़ास करके सरहदी इलाकों में काम करने में बहुत सहूलत होगी और दिगर सरगर्मियों पर जो सरहद पार से होती है उस पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। इसी अखबार की अगर हम एक और अहम खबर की बात करें तो जो खेल के सफ़े पे सुर्खी लगाई गई है वो IPL से मुतालिक है। कोलकाता और चेन्नई में ताज के लिए फैसला कुन जंग आज। IPL 14 का फाइनल, कोलकाता खिताबी हैट्रिक लगाने के लिए बेचैन। माही की टीम चेन्नई सुपर किंग्स चौथी ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। धोनी और मॉर्गन की कप्तानी का भी एक तरह से इम्तिहान कहा जा सकता है इस मैच को। और आगे बढ़ते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर अहम खबरों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल पे सुर्खी लगाई गई है वो है हदें पार की तो फिर होगा सर्जिकल स्ट्राइक। कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का इंतबाह है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों में एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में दखल अंदाजी करने की गलती ना करे और वो अपनी हदों में रहे और पड़ोसी मुल्क ने अपनी हदें पार की तो हिंदुस्तान एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक करने से गुरेज नहीं करेगा। इसी अखबार की एक और अहम खबर जो सफ़े अव्वल पे शाये की गई है वो सबके लिए टीकों की दस्तयाबी यकीनी बनाना बड़ा चैलेंज है। वज़ीर ख़जाना के बयान को अखबार ने शाये किया है। G20 वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंकों की गवर्नरों FMCBG की मीटिंग में कहा है कि वबा की वजह से बहरान बेहतरी के रास्ते पर लाने के लिए तमाम अफराद को टीकों की मसावी दस्तयाबी जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी को अखबार ने शाये किया है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा हमारा समाज की अगर अहम खबर की बात करें तो जो आलमी सफ़े पर सुर्खी शाये की गई है वो ये है कि
کویت نے خواتین کو فوج میں شامل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، خاص کر کہ اگر خلیجی ممالک کے حوالے سے دیکھیں تو خلیجی ریاست کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب خواتین بھی عسکری عہدوں پر کام کر سکیں گی۔ کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کونا کے مطابق وزیر دفاع شیخ حماد جابر علی الصباح نے بتایا ہے کہ اب کویتی خواتین کے لیے بھی فوج کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور وہ ملٹری سروس میں اسپیشلٹی آفیسر، زون کمانڈر اور کمیشنڈ آفیسرز کے طور پر بھی اپنے کردار کو ادا کر سکیں گی، اپنا رول نبھا سکیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اگر اہم خبروں کی بات کریں تو مرکزی اقلیتی فرقے کے تحفظ کے لیے پابند عہد ہے، یہ کہنا ہے ہردیپ سنگھ پوری کا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار کشمیر میں اقلیتی فرقے کے لوگوں کے تحفظ کے لیے بھی پوری طرح سے پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں صورتحال میں لگاتار بہتری آ رہی ہے اور کوئی بھی کسر سرکار جو ہے وہاں کے لوگوں کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا دلی سے شائع اردو کے اخبارات کا مختصر سا جائزہ، اور آئیے اب بڑھتے ہیں کچھ عالمی خبروں کی طرف۔ لبنان کی دارالحکومت بیروت میں ایک مظاہرے کے لیے جمع ہوئے لوگوں پر فائرنگ میں کم از کم 6 لبنانی شیعہ ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین دھوئیں سے ڈھکی سڑکوں پر پتھراؤ کرتے نظر آئے۔ فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا اور دکانوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حملہ ان مظاہرین پر کیا گیا جو حزب اللہ کی جانب سے گزشتہ سال بیروت میں ہونے والے تباہ کن بندرگاہ دھماکوں کی تحقیقات کرنے والے جج کو ہٹانے کے مطالبے کے لیے بلائے گئے مظاہرے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ اس دھماکے میں تقریباً 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فوج نے ان مظاہروں کو دبانے کے لیے ٹینک اور فوجی تعینات کیے جو 1975 سے 1990 کی خانہ جنگی کی یاد دلاتے ہیں۔ تعیونیہ علاقے میں فوج کی بھاری تعداد میں تعینات کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو بھی سڑک پر اسلحے کے ساتھ نظر آئے گا اسے گولی مار دی جائے گی۔ اور اس دوران لبنان کے صدر نے کہا ہے کہ تشدد کے لیے ذمہ دار لوگوں کو جواب دہ قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی کو بھی اپنے مفاد کے لیے ملک کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دے گی۔ لبنان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جمعرات کو ہوئے تشدد پر افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت ملک کو اقتصادی کساد بازاری سے باہر نکلنے کے لیے بات چیت سے قبل بین الاقوامی مالیاتی ادارے کو ضروری مالی اعداد و شمار فراہم کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے امن کی اپیل کی اور ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ تشدد میں مارے گئے لوگوں کے آج عمومی تعزیت کی جا سکے۔ اور بات کھیلوں کی کریں تو انڈین پریمیئر لیگ 2021 کا فائنل میچ آج دبئی میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ 2 بار کی IPL چیمپئن کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور 3 بار کی چیمپئن چنئی سپر کنگز کے درمیان ہوگا۔ کولکاتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیم اپنا تیسرا فائنل کھیلنے جا رہی ہے۔ اس سے قبل انہوں نے 2012 اور 2014 میں فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا اور دونوں بار ٹائٹل جیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چنئی کی ٹیم اپنا نواں فائنل کھیلنے گی۔ چنئی نے اس سے قبل 2008، 2010، 2011، 2012، 2013، 2015، 2018، 2019 میں فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ آخری 8 فائنل میں سے وہ 5 بار ہار گئی تھی اور 3 بار چیمپئن بنی۔ ان دونوں ٹیموں کے باہمی مقابلے کی بات کریں تو اب تک وہ 25 بار ایک دوسرے سے ٹکرا چکے ہیں، جس میں چنئی نے 16 بار اور KKR نے 8 بار جیت حاصل کی ہے، جبکہ ایک میچ بے نتیجہ رہا ہے۔ اور آئیے اب جان لیتے ہیں ملک کے موسم کا مزاج۔
اور ناظرین اس کے ساتھ ہی بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے. فی الحال اجازت دیجیے. آداب.